Now, here is your activity 4.4. Take some tap water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water so that the bulb immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. मीन्स आपको क्या करना है, एक आपको टैप वाटर लेना है बीकर या मग में और थर्मोमीटर उसमें डीप करना है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और सो दैट द बल्ब इमर्स इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड्स ऑफ द कंटेनर. और आपको बॉटम साइड्स बिल्कुल भी टच नहीं करना है, थर्मोमीटर को वर्टिकली आपको रखना है और ऑब्जर्व करना है. और आप वेट कीजिए जब तक कि मर्क्यूरी थ्रेड जो है थर्मोमीटर का वो स्टडी ना हो जाए. नाउ नोट द रीडिंग इन दिस. यू कैन सी हियर दिस इज द एक्टिविटी 4.4. आप ऐसे कर सकते हैं, टैप वाटर लेके मग में और ऐसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसके अंदर रख सकते हैं. नोट द रीडिंग. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास. मीन्स आपको जो रीडिंग है वो टेम्परेचर है वो उसकी नोट करनी है वाटर के एट दैट टाइम, और सबको 1 by 1 सबको मेंशन करना है उसका टेम्परेचर. Now Bujo now understands why clinical thermometer cannot be used to measure high temperature but still wonders whether a laboratory thermometer can be used to measure his body. Now, in addition to the precautions to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not titled, means upright उसे सीधा ही रखना है. Bulb should be surrounded from all the sides by the substance of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container. जो उसका बल्ब है वो उसका जो सरफेस है, बॉटम सरफेस जो रहेगा कंटेनर का, उसे वो टच ना करें. Are there any variations in the readings? Discuss the possible reasons. Let us try to understand this. Now, activity 4.5. Take some hot water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happens now. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. मीन्स आपको क्या करना है, हॉट वाटर का बीकर लेना है या उसमें मग में थर्मोमीटर आपको पुट करना है, उसका टेम्परेचर मेज़र करना है, बल्ब को आपको सरफेस से टच नहीं करना है, और मर्क्यूरी थ्रेड जब तक स्टडी ना हो तब तक आपको मेंशन नहीं करना है कि उसका टेम्परेचर कितना है. You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. आपने देखा होगा जब टेम्परेचर नोट करते टाइम आपको आपके माउथ से बाहर निकालना पड़ता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. बट कैन यू then use a laboratory thermometer to measure your this is your page number 40, body temperature. Obviously it is not convenient to use a laboratory thermometer for this purpose. मीन्स लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो हमारी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए नहीं है. व्हाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ. जो मर्क्यूरी है, why does the mercury not fall or rise in the clinical thermometer when taken out of the mouth? जब हम माउथ से बाहर निकालते हैं तब मर्क्यूरी जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर का वो बढ़ता नहीं है. ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. डू यू सी अ kink near the bulb? Here is a kink, you can see. What is the use of the kink? It prevents mercury level from falling on its own. Now there is a lot of concern over the use of mercury in thermometers. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. These days digital thermometers are available which do not use mercury. अब डिजिटल थर्मोमीटर भी हैं और वो लोग मर्क्यूरी उसमें नहीं यूज़ करते. Now transfer of heat. You might have observed that frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. So you can understand that both in cases the heat flows from hotter object to a colder object. मीन्स अब आपको ऑब्जर्व करना है कि फ्राइंग पैन जो हॉट हो जाता है when kept on a flame, जब उसे फ्लेम पे रखा जाता है, इट इज़ बिकॉज हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. वो फ्लेम जो है वो हीट पास हुई है फ्लेम के थ्रू यूटेंसिल तक पहुंचती है. व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर,
और पेन जैसे ही फायर से रिमूव होता है इट स्लोली कूल डाउन, और वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है. वाई डज इट कूल डाउन? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. हीट का फ्लो करती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में. इन फैक्ट इन ऑल cases heat flows from a hotter object to a colder object. How does heat flow? Let us investigate. Now take a rod or flat strip of a metal, say aluminum or iron. Fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be at nearly equal distance. Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end to the rod in between bricks. Now heat the other end of the rod and observe what happens to the wax pieces. Do pieces begin to fall? Which piece falls the first? Do you think the heat is? यहाँ पर आपको वैक्स पीस रखना है, ऐसे स्टिक पे ऐसे करना है और नीचे से आपको हीट देनी है इस रॉड पे, और आपको देखना है कि कौन सा जो वैक्स है वो स्टिक के ऊपर से कौन सा मेल्ट होके गिरता है. Now transfer the heat end nearest to the flame to the other end. The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known the conduction. जब hotter end से colder end तक आते हैं तब उसे हम conduction कहते हैं. In solids generally the heat is transferred by the process of conduction. Heat जो है वो कैसे transform होती है? Conduction process से. Do all substances conduct heat easily? You must have observed that the metallic pan or cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? No. हम पैन को हैंडल से पकड़ते हैं, कभी वो हॉट भी हो जाता है तो हमें केयरफुल रहना है. ज़्यादा हॉट ना हो, मीन्स हल्का सा हॉट है तो आप उसे पकड़ सकते हैं, बट अगर ज़्यादा हॉट हो गया है तो आप उसे टच ना करें. हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर. कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर. डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स इन हॉट वाटर. वेट फॉर अ फ्यू minutes. Touch the other end. Enter your observation in table 4.3. मीन्स आपको क्या करना है, हीट जो है वो स्मॉल पैन और बीकर में, मीन्स हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और बीकर. स्मॉल पैन या बीकर में आपको हीट करना है वाटर को. कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक, उसके अंदर उसे रखना है, डीप करना है हॉट वाटर में. वेट फॉर फ्यू मिनट्स. टच द अदर हैंड. एंटर द ऑब्जर्वेशन. Now the materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. जो materials है जो heat को allow करती है उसमें से pass out होने के लिए उसे हम conductors of heat कहते हैं. For example aluminium, iron and copper. The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat such as plastic. Plastic जो है वो poor conductor of heat है. Wood जो है वो poor conductor of heat है. द पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स. और जो जिसमें से हीट पास आउट हो जाती है उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं, और जो पुअर कंडक्टर्स है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं. द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. और वाटर और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट की. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंसेज? लेट अस फाइंड आउट. मीन्स हीट कैसे ट्रांसफर होती है. नाउ 4.8. टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क. फिल इट टू थर्ड्स इन वाटर. मीन्स आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है और उसे 2/3 वाटर से फिलअप करना है. प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू द प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट at the bottom of the flask using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. आपको क्या करना है कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क में आपको 2/3 वाटर उसमें प्लेस करना है. देन ट्राइपॉड उससे अरेंज करना है और जो प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट द प्लेसिंग कैंडल. मीन्स जो फ्लास्क है उसे ऐसे अरेंज करना है कि जो हीट उसे फ्लेम कौन देगा, कैंडल देगा. हीट जो उसे देगा वो कैंडल देगा. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क स्टिल. प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. और फ्लास्क के बॉटम में आपको पोटेशियम परमैंगनेट डालना है. जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल. और कैंडल को नीचे रख के और फ्लास्क को हीट करना है. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. When the water is heated, the water near the flame gets hot. अगर जब पानी जब गर्म हो जाएगा तो फ्लेम जो है उस वाटर के आसपास की वो भी हॉट रहेगी और हॉट वाटर राइजेस अप और जो गर्म पानी है वो
ऊपर ऐसे आ जाएगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स, और जो कोल्ड वाटर है वो डाउनवर्ड जाएगा, द सोर्स ऑफ द हीट। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड rises. In the next session, we are going to take the another part of this lesson. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye. Take care.